Today I am taking the friction chapter of next level. The first is about angle of friction and cone of friction, angle of repose, and equilibrium of a body on the inclined plane. These 4 points we will discuss in today's lecture. First of all, I will take angle of friction. Angle of friction is the angle made by resultant of friction force and normal reaction with the vertical axis with the normal reaction. That phi angle is known as angle of friction, resultant of friction and normal reaction with vertical axis is angle of friction. Cone of friction, when this resultant of friction and normal reaction rotate about the vertical axis, it will form a cone of angle phi with the vertical axis. This cone is known as cone of friction. Third item, angle of repose. Angle of repose is the maximum angle of inclination of a inclined plane up to which the body will remain at rest on its own. ऑन इट्स ओन का मतलब बेटे क्या है, जैसे जैसे हम इंक्लाइंड प्लेन पे फॉर एग्जांपल कोई बुक पढ़ी है, कोई पेन पढ़ा है, कोई भी बॉडी पढ़ी है, हॉरिजॉन्टल पे तो कोई रेस्ट पे रहेगी. इंक्लाइंड प्लेन पे जब हम उसका एंगल राइज करते जाएंगे, वन स्टेज विल कम व्हेन body will start moving downward. That stage or that maximum angle at which motion starts, that inclined angle is known as angle of repose. तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये है बेटे, वो मैक्सिमम एंगल है, उसके बाद जरा सा भी वो एंगल बढ़ेगा तो वो बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगी. या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई भी इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी पड़ी है एंड वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो body will not move downward. The next topic is about equilibrium of a body or block on the inclined plane. Inclined plane पे बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम में रह भी सकती है बेटा. अगर उसका एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, इट विल नॉट मूव. एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटे, वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है. एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है अगर, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी नीचे जाएगी. एंगल ऑफ रिपोज से अगर ज़्यादा है तो हमें बॉडी को रोकना पड़ेगा. वी हैव टू अप्लाइड फोर्स, एंड अप्लाइड फोर्स जब भी लगाएंगे और फ्रिक्शन भी आएगा बेटे. फ्रिक्शन के बारे में नोट रखना, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब बेटे पुल लगाने पे क्या होगा, पुल लगाने पे या तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा. और अगर मैं वो पुल नहीं लगा रहा और एंगल ऑफ रिपोज पे है बॉडी तो वो नीचे आएगी. अगर नीचे आ रही है तो फिर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा. बाकी बेटे मैं डिटेल्स आपको भी एलुबरेट करके ऑन पेपर आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. थैंक. फर्स्ट टॉपिक टुडे आई विल टेक एंगल ऑफ फ्रिक्शन. Angle of friction is denoted by phi. Whenever a body is lying on a horizontal plane and force is acting, pull mean force is acting on it, weight of the body is acting downward, normal reaction in the upward, and if body moves in this direction, friction will be in this direction, frictional force which is F. Angle of friction is a angle between the resultant of frictional force and normal reaction. Normal reaction और friction का बेटे resultant force कौन सा है? Let's say this one. This is the resultant of these two forces noted by S. ये जो resultant है बेटे, the angle which it makes with the vertical normal reaction is known as angle of friction. This is the first
thing I want to explain today, angle of friction. Second is cone of friction. Cone of friction is similarly, if angle of friction हो बेटे, this is angle of friction, phi is angle of friction. इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को बेटे अगर मैं रोटेट कर देता हूं इस एक्सिस के अबाउट, क्या होगा? ऑल द एंगल्स फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस विल बी फाई. एक्सिस के अबाउट बेटे रोटेट कर दिया तो इस फाई एंगल से जो कोण बनेगा दैट इज नोन एज कोन ऑफ फ्रिक्शन. ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कोन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए. द थर्ड आइटम इज angle of repose. Angle of repose is the maximum angle of inclination, alpha, maximum value at which body, maximum angle at which body can remain at rest due to friction only. बेटे मैं ये एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ बट ये बॉडी नीचे स्लाइड नहीं कर रही, ये रेस्ट पे है. पर एक स्टेज ऐसे आ जाएगी जब ये मैक्सिमम एंगल के बाद अगर मैं इसको ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड. इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगी. एट दिस स्टेज फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मूवमेंट के अगेंस्ट लगेगा बेटे. या इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इस मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ पुल लगाना पड़े. तो फिर ये हम अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में कवर करेंगे बेटे इसको. बट फिलहाल एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन अप टू विच बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज बेटे, फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ रिपोज 35 डिग्री है, तो जैसे इसका मतलब 0 से लेके 35 डिग्री तक किसी भी एंगल पे मैं उस बॉडी को रख दूंगा तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. पर अगर ये एंगल 36 डिग्री हो गया या उससे ऊपर हो गया तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड. एंगल ऑफ रिपोज ये है. इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन inclined plane. It is all about like this. ये बेटे बॉडी है जिसका वेट W है. W ऑलवेज एक्ट इन द वर्टिकल डाउन. ये इंक्लाइंड प्लेन है. दिस एक्सिस इज नोन एज along the plane, along the inclined plane. और ये वाला जो एक्सिस है बेटे दिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन. ये परपेंडिकुलर है बेटे इसके. तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, टू द प्लेन. तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बेटा. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. और दूसरा बेटा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि एंगल के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किसी भी एंगल के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो एंगल भी सेम बन जाता है. फॉर एग्जांपल ये लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बेटे, इस पे ऊपर, और ये लाइन किसके ऊपर है, तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे. अब अगर एज्यूम कर लिया जाए बेटे कि ये बॉडी जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे आने की. इसको नीचे आने से रोकने के लिए बेटे मुझे आई हैव टू अप्लाई सम टू स्टॉप दिस मूवमेंट. मूवमेंट नहीं है बेटा, मूवमेंट, मोशन को मूवमेंट बोलते हैं. मूवमेंट पहले आपने पढ़ा दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स इज मूवमेंट. उसको बेटे हम लिखते हैं मूवमेंट.
यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है, बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है, मैंने इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए बेटे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अप्लाई सम पुल और फोर्स ऑन द बॉडी। मेन आज आपने ये पॉइंट, इसको मैं एलोबरेट करके बेटे आपको नोट्स भेजूंगा। बस इसमें 3 कंडीशंस हैं बेटे, 1 2 एंड 3, ये आपने समझ लेनी है। ये जो पी लगाना है बेटे, ये 3 टाइप से लग सकता है, along द प्लेन, along द इंक्लाइंड प्लेन, इसको पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन भी बोल सकते हैं। तो इसको मैंने P1 से डिनोट कर दिया, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन P1। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको बेटे मैंने P2 बोल दिया। और तीसरा भी एक कंडीशन बन सकती है, थर्ड, ये P2 हो गया बेटे हॉरिजॉन्टल, P1 क्या था, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, और P3 क्या था, एट सम एंगल थीटा विद द दिस एंगल, इट इज P3। तो ये बेटे अब P2 P1 P3 के 3 केसेस हो गए, और इनमें भी बेटे आगे 2 केसेस हो जाएंगे कि बॉडी या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी, बॉडी या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी, या अप जाएगी या डाउन जाएगी। और इनके बेटे ये डिफरेंट केसेस हैं। इनमें से एक केस को बेटे मैं पूरा एलोबरेट करके आपको बताने जाऊंगा, वो मैं आपको रिटन नोट्स में भेजूंगा उसके बारे में डिटेल्स। बस इस बात को याद रखना बेटे, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल यहाँ भी अल्फा ही रहेगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन तो ऑलरेडी पैरेलल ही चल रही है। ये एंगल अल्फा हम यहाँ पे मेज़र कर लें, यहाँ पे मेज़र कर लें, ये अल्फा रहेगा। और एंगल पे जब भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो सेम एंगल बनेगा। इस बेसिस